is in Kenya. Prabhupada had went in, and he had established a temple in Mombasa. But the situation was very bad. So His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj was awarded the responsibility of taking care of the temple. So Maharaj chose his Humapati Prabhu to go there alone single-handedly. Prabhuji was telling us yesterday that when he reached the very next day, the only devotee who was staying in that temple, he also left. So Maharaj and Prabhuji was alone there, and he served together for all 36 years. And today there are more than six temple. Yeah, more than 7 temples. Seven big temples in Kenya itself. Kenya is a country where people were very poor. Very poor. If you keep sending things outside, immediately things will be stolen. But in such a stage, in 1986, from there, 36 years, Maharaj has been serving there. 1989 to 1994, he served as Vice President in ISKCON Nairobi. And 94 to 2021, he served as Temple President in ISKCON Nairobi. In 1994 and 1996, ISKCON Kenya was Africa's top book distributor. Maharaj was the top book distributor. And in 2017 to 2024, they purchased 100 acres of land for Goshala. And they have currently 150 cows. In a country where cows are slaughtered, it's not in India where cows are respected as mother. In a country where cows are slaughtered, to have a Goshala and to have such a big Goshala, it's a miracle. Recently in 2024, Prabhuji also purchased, developed ISKCON Nakuru and ISKCON Eldoret. It is undergoing projects which are going on in Kenya. Presently, he is serving as GBC representative for East Africa, and he is also a Diksha Guru. So we are very grateful that Prabhuji has come here, blessed us. Such a wonderful and very dear disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. We are very, very fortunate. It's like Maharaj is again sending his representatives over here to bless us so that we can progress in Krishna consciousness. Let us welcome Prabhuji by loudly chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय विश्वपाद परमहंस परमपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय गौर परमानंद. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories Gauranga. Om Ajnanam Timirandhasya Jnananjana Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadavayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Radha Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Nidantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Bala Sagana Gita Shri Shakhanidamsa Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Vaishyattri Shuddharine Namo Mahavendaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauramise Namah. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopikakanta Radha Kanta Namaste Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavanusute Devi Pranami Haripriye Pancha Kalpataru Vaisya Kripa Sindhu Varevacha Padiyana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. तो आप भागवतम पढ़ते हो भगवगीता कोई ना आपके ऊपर ठीक है. भगवत एक थोड़ा श्लोक पढ़ते हो 9th chapter 2nd verse number 2. अरे पहनाया है प्रभु.
हम लोग प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे। हमारे पीछे दोहराइए। वृंदावने रमण रेति प्रसिद्ध भूमौ तत्रापि कृष्ण बलराम सुपाद मूले ज्ञानम परम परम कृष्ण सुधर्म युक्तम दंतस्तु ते देव प्रभुपाद नमो नमस्ते दंतस्तु देव प्रभुपाद नमो नमस्ते। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, कृपया ध्यान पूर्वक सुनने का कष्ट करें। वृंदावन में रमण रेती की प्रसिद्ध भूमि पर जहां कृष्ण और बलराम के चरण कमल विराजमान है, आपने परम ज्ञान का प्रचार किया, वह ज्ञान जो श्री कृष्ण की परम धर्म है। हे दिव्य गुरु प्रभुपाद, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य। भगवद गीता एज इट इज यथारूप, चैप्टर 9 अध्याय 9 टेक्स्ट नंबर 3 श्लोक संख्या 3। तो हमारे पीछे दोहराइए। अश्रद्धाना पुंसा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप प्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। पढ़ें, उच्चारण करें। ओके, अनुवाद हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य में एक ही पैराग्राफ पढ़ूंगा। ठीक है, ठीक है प्रभु। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगत से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृतम में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवतम 4:31-14 में कहा गया है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्र स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारास्य यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणम अर्पिचेत्। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां पुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है।
ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया ऑलरेडी हमने क्या पहले तो पढ़ लिया। हरे कृष्णा। मेरा अहोभाग्य है, आई एम ग्रेटली फॉर्चुनेट कि आपके लोग के समक्ष मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर मिला है। इसलिए हम प्रभु जी के बहुत बहुत आभारी हैं, हमको निमंत्रण दे करके आप लोग के संग में कृष्ण कथा डिस्कस करने का अवसर प्रदान किया, इसलिए हम आपके आभारी हैं। तो जब मैं अपना रियलाइजेशन बता रहा हूँ, जब पहले मैं स्कूल में ज्वाइन किया तो उस समय भारत के यूथ स्कूल में नहीं होते थे। मोस्टली बंगाल और उड़ीसा के वो नेचुरल स्वाभाविक भक्ति है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है। महाराष्ट्र से भी बहुत वहाँ के ज़्यादा होते हैं सब जगह, और साउथ इंडिया का बहुत स्ट्रांग बेज है धर्म का। तो वहाँ क्योंकि प्रभुपाद जी इंग्लिश में ही प्रचार करते थे, तो इसलिए साउथ इंडिया के लोग थोड़ा काफी जुड़ते थे। नॉर्थ इंडिया के तो कोई कोई मिलता था, और महाराष्ट्र के भी बहुत कम लोग होते थे। गुजरात के लोग तो सवाल ही नहीं, पैसे दे देते थे पर कोई भक्त नहीं बनता था। यशोमती नंदन प्रभु कितना प्रचार करते थे, नहीं बनते थे। लेकिन आज इतना अपार खुशी होती है कि भारत में हर यूथ का झुकाव इस्कॉन की तरफ है, इंटरेस्टेड है। ये प्रभुपाद की कृपा है, और इस्कॉन का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि भारतीय यूथ इस्कॉन के साथ है। पूरे विश्व में, भले पूरे विश्व में इतने यूथ नहीं है, लेकिन भारत में जितने यूथ इस्कॉन के साथ है। अभी मैं लास्ट कार्तिक में दिल्ली में था, वहाँ एक दिन सुंदर गोपाल प्रभु ने प्रोग्राम किया, 15,000 यूथ धोती कुर्ता में ज्वाइन। हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज जब थे तो दूसरा प्रोग्राम किया था वृंदावन में, गोवर्धन में, तो मुझे भी इनवाइट किया था। तो 5,000 यूथ थे धोती कुर्ता। इसलिए बहुत अपार आनंद होता है कि भारतीय यूथ इस्कॉन के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए भविष्य में यही आप लोग भी पूरे विश्व में प्रचार करो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो प्रभु ने कहा कि मैं भक्ति में श्रद्धा और डिटर्मिनेशन है ना, कैसे हमारा डिटर्मिनेशन और श्रद्धा होनी चाहिए। तो ऑलरेडी प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख लिया। सो आप लोग में कुछ श्रद्धा तो होगी, तभी आप ये धोती कुर्ता पहन लिए, है कि नहीं? कोई स्टूडेंट तो नहीं पढ़ते, तो किसी किसी का एसोसिएशन मिला होगा भक्तों का। श्रद्धा तो सब में होती है, हर जीव में भगवत श्रद्धा होती है, लेकिन वो श्रद्धा ढकी जाती है। क्योंकि आप देखो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपके पास श्रद्धा है कि ये यूनिवर्सिटी हमको इंजीनियर बना देगी, डॉक्टर बना देगी, हमको डिग्री मिल जाएगी, तभी एडमिशन लेते हैं। आप ये फ्लाइट का टिकट लेते हैं, श्रद्धा होती है टिकट से हमको अपने जगह पर पहुंच जाओ ट्रेन में, तो कहीं भी श्रद्धा जरूरी है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पता नहीं है कुछ, माँ बोल देती है कि तुम्हारा पिता है, बोलने से ही ना पूरा लाइफ भर उसको उनको पिता मानता है, सेवा करता है, हमेशा अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि माँ की वाणी पे श्रद्धा है। ज्ञान नहीं है वहां, माँ ने कह दिया कि बेटा ये तुम्हारा पिता है, भाई है, चाचा है, नाना है, ओके यू फॉलो मी। तो केवल माँ का वर्ड पे वो बच्चा मान लेता है, और पूरे लाइफ भर किसी को
पिता मान करके, किसी को भाई मान करके, किसी को अपना स्नेही मान करके हमेशा सेवा करता है। वो श्रद्धा से ही ना, ऐसे विश्वास, श्रद्धा को संस्कृत में श्रद्धा कहते हैं, इंग्लिश में विश्वास। उसी प्रकार से वेद शास्त्र को वेद माता कहते हैं, माता है। तो इस पर श्रद्धा, उसी प्रकार से जैसे माँ के वर्ड पे श्रद्धा हुई, उसी प्रकार से हम लोग को शास्त्रों पर श्रद्धा होनी चाहिए। कहते हैं अशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्य सन सिद्धि में वाप्त। कहते हैं जिसको शास्त्र, जैसे आपका पुस्तक में, मैं उदाहरण दे रहा हूं, हमारा एक भाई है, वो भी साइंटिस्ट और इंजीनियर, हमको बोला कि ये भगवद्गीता किसी ने लिख दिया। तो थोड़ा जो बहुत एजुकेशन होते हैं, जो पास नहीं होते, क्रिकेट माइंड होता है, यार लिख दिया है। बोला ठीक है, लेकिन तुम्हारे यूनिवर्सिटी में किसी की लिखी हुई बुक तुमको इंजीनियर बनाती है ना, किसी की लिखी हुई बुक आप पढ़ते हैं ना, तो जो किसी की लिखी हुई बुक किसी को इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बना सकती है, तो भगवत गीता मान लीजिए किसी की लिखी है, व्यास ऋषि ने लिखा है, मान लीजिए, तो क्या है, वो उनको भगवत धाम नहीं ले जाएगी, मृत्यु से नहीं बचाएगी। हाँ सच है। आप लोग तो सब स्टूडेंट हो, आपको विश्वास है ना कि हमारे ये बुक्स है, हम पढ़ेंगे तो हमारी सफलता मिल जाएगी, तो सेम विश्वास अगर होना चाहिए। अब विश्वास जब होता है तब व्यक्ति, विश्वास का अर्थ होता है टीचर पे विश्वास। जब पुस्तक पे विश्वास है तो पुस्तक को पढ़ाने वाले पे विश्वास, यह विश्वास का अर्थ होता है। तो कहते हैं जब श्रद्धा होती है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, तो भक्तों का संग करते हैं। कृपादेही अनुवाद किया है। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा के बगैर न आदमी सुखी रह सकता है, न तो शांति मिलेगी। अगर आप अपने मित्र, आपके फ्रेंड्स हैं, श्रद्धा न हो, डाउट हमेशा हो, जब श्रद्धा होती है तो आदमी डाउट नहीं होता है कि ये हमारा चोरी कर लेगा, ये हमको परेशान कर देगा, हमको ये करेगा, वो करेगा, तो आप सुखी रह नहीं सकते, आप शांत नहीं होंगे, हमेशा एंजाइटी में होंगे। कहीं भी श्रद्धा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए कहते हैं भक्ति में तो श्रद्धा का जन्म भक्ति से होता है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। जो क्वालिफिकेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस इज श्रद्धा, फेथ। अगर फेथ नहीं होगा तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हर जगह फेथ इंपॉर्टेंट। अगर मटेरियल लाइफ में फेथ इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी फेथ इंपॉर्टेंट है। फेथ बहुत इंपॉर्टेंट। अगर जिसका फेथ ही नहीं है तो आदमी भ्रमित हो जाता है, बिविल्डर हो जाता है। फेथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फेथ कैसे होता है? साधु संग, एसोसिएशन से। ये चीजें क्या है? कुछ प्रैक्टिकल है। विश्वास, विश्वास का अर्थ है जो आपको ध्यान रखता है। जैसे अब देखो आजकल के बच्चों का भी पिता के ऊपर विश्वास उठ जाता है, अपने परिवार पे भी लोगों का विश्वास उठ जाता है, क्योंकि आज का एडवांसमेंट, मटेरियल एडवांसमेंट से हर आदमी उसका सेंटर सेंस एंजॉयमेंट है। जब सेंटर सेंस एंजॉयमेंट होता है तो कोई दूसरे का ध्यान नहीं देता, वो एक्सप्लॉइट करता है। एक्सप्लॉइटेशन कम्स ड्यू टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, दूसरा कोई कारण है नहीं। तो जहां जब आप अपना अपना सेंस एंजॉयमेंट मीन सेल्फिशनेस, जब आप सेल्फ सेंटर्ड हो तो आप दूसरे के ऊपर, आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। विश्वास उसके ऊपर किया जाता है जो आदमी दूसरे की रक्षा करता है, परोपकार करता है, दूसरे का ध्यान रखता है। तो वो विश्वास होता है, उसके ऊपर ध्यान रखता है। इसलिए वही इतना ज्यादा विश्वास होता है कि आदमी अपना सब कुछ चेंज कर दे। जैसे शिल प्रभुपाद जी थे। शिल प्रभुपाद जी
से जब हिजोनीदास गोपाल कृष्ण महाराज मिले, श्रद्धा की बात करता, कनाडा में मिले, और प्रभुपाद जी महाराज हमेशा उनको लेटर भेजते थे। तो एक बार लेटर भेजा कि हमारे पिता माता का ये इंस्ट्रक्शन है। प्रभुपाद बोले कभी बहुत मुश्किल होगा, पेरेंट्स का इंस्ट्रक्शन, मेरा इंस्ट्रक्शन तो कैसे चलेगा। अब देखिए वहां डिसीजन लेना था महाराज। अंत में महाराज ने पेरेंट का इंस्ट्रक्शन लेना बंद कर दिया, और महाराज अपने माता के, महाराज बहुत कल्चर्ड थे हिजोनीदास गोपाल कृष्ण महाराज। एक बार गिरिराज महाराज बता रहे थे, हिजोनीदास गिरिराज महाराज, कि महाराज को अपनी माँ को मिलने जाना था तो अकेले नहीं गए, गिरिराज महाराज को साथ में लेके गए। और जब महाराज का वहां सदाचार देखा माँ के साथ, गिरिराज महाराज सरप्राइज हो गए। थोड़े ही समय रहे तो उनकी माँ हमेशा मिलने आती थी जुहू में, लेकिन मिलते नहीं थे क्योंकि उनकी माँ इम्पर्सनिस्ट थी, आर्य समाज की। तो एक भक्त, अभी तो नहीं है, एक इक्ष्वाकु प्रभु पुजारी थे पहले, वो हमको बताया कर, वही वो थोड़ा नाटी ढंग से थे। तो सभी लोग महाराज को, महाराज बोले थे कि मेरी माँ आए तो बोल देना मैं बहुत नहीं हुई। तो वो आएंगे 1 घंटे टाइम, 1 घंटे समय उसको बैठ देना पड़ेगा। महाराज तो एक सेकंड का काउंट करते थे ना, एक सेकंड कैलकुलेट करते थे, हमारा यहाँ समय बच जाए, यहाँ बचे। अब व्यर्थ कालत्व, ये जो रूप गोस्वामी 9 सिम्टम्स ऑफ भाव भक्ति का बताते हैं, 9 लक्षण भाव भक्ति। तो उसमें एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्व, शांति अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति मानस होने का, आशा पास समुद्र गंधा, नाम गाड़े सदा। तो 9 सिम्टम्स हैं, मैं तो एक ही सिम्टम का डिस्कस कर रहा कि अव्यर्थ कालत्व। महाराज के जीवन में कोई भक्त देखा होगा जो उनका एसोसिएट, वो एक मिनट सेकंड का कैलकुलेट करते थे, कहां समय बचे दूसरी सेवा के लिए। इसलिए महाराज कहते थे कि नहीं, हमारी माँ आएगी तो हर वीक में आती रहेगी तो 1 घंटा लेगी, तो मेरा कितना टाइम जाएगा। लेकिन इक्ष्वाकु प्रभु थे, वो सब मना करते, पहुंच जाते, माता जी चिंता मत करो, हाय महाराज। तो लेके जाते थे धीरे से, वो केवल आनंद लेने के लिए। महाराज कैसे बातचीत करते हैं अपनी माँ से, इस उनका दूसरा मोटिवेशन नहीं था। और उनकी माँ बोलती गोपाल बेटा घर आ जा। एक बार नैरोबी में 1990 में महाराज आए, गुरु महाराज हमको पूछे, उमापति ठीक है सब? मैं बोला मेरी महाराज, माता जी मेरी महाराज रोती है। मैं बोलता हूँ ज्वाइन हो गया नैरोबी में। यार महाराज बोलते हैं मेरी माँ भी अभी भी रोती है, तो मैं क्या करूं? तो कहने का अर्थ है, पहली बात श्रद्धा जब साधु पे श्रद्धा होती है तब डिटैचमेंट आता है, डिटैचमेंट फ्रॉम फैमिली। ये पारिवारिक संबंध है बहुत। मैं परिवार को हेट करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अटैचमेंट भक्ति में बहुत बाधक है। बाहर का अटैचमेंट बाधक नहीं है, बाहर का उतना अटैचमेंट जो फैमिली अटैचमेंट, प्रसंगम अजरम पासम, आत्मनो कवयो विदु सैव साधुष्कृत मुक्त द्वार पावे। कहते जो फैमिली अटैच अजरम बहुत कठिन है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। आप देखो केवल फैमिली अटैचमेंट से हम एक परिवार का हो कितना लोग मर्डर कर देते हैं। फिर और फैमिली अटैचमेंट क्या है, फैमिली के लोग ही चोरी करने लगते हैं। भागवतम में तो कहा गया है फैमिली के लोग सब कैसे हैं। ऐसे बोलूंगा तो आपको बहुत हर्ट होगा। प्रभु जी ने तो एक वर्ड यूज कर दिया, वो सच है। वो हमारे एक मित्र हैं, हमारे गुरु भाई है, बड़े बिजनेसमैन है। उनका थोड़ा नीस का प्रॉब्लम हुआ, चलने थोड़ा प्रॉब्लम हो गया,
तो बोले कि ये बीमारी जो है हमको भगवान के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस सिखा दिया। तो बोला क्या हो गया? बोला प्रभु जी अभी पता चला कि कोई फैमिली मेंबर साथ नहीं देते, अरबोपति आदमी कोई साथ नहीं देते हैं, वाइफ साथ नहीं होती है। अभी क्योंकि मुझे तकलीफ है उसको बर्डन फील करना होती है, बड़ा देखभाल करना पड़ेगा। क्योंकि उनके पास तो क्योंकि अटैचमेंट होता है तो फैमिली मेंबर से ही सेवा लेना चाहता है कि नहीं? लेकिन उस समय फैमिली मेंबर कोई साथ नहीं देता है, एक दिन करेगा 2 दिन बाद में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबको अपना आनंद लेना है, किसी की सेवा। और भक्तों की सेवा प्रभुपाद जी थे, यही उम्र थे, वृद्धावस्था इतनी उम्र थी, भक्त लोग कितना देखभाल करते थे। 1-1 घंटे मसाज होती थी, कोई फैमिली मेंबर कर सकता है? ये स्पिरिचुअल रिलेशन है, इसको स्पिरिचुअल रिलेशन फुल ऑफ ब्लिस। क्योंकि वो कृष्ण के संबंध में रिलेशन है। कृष्ण ने परिवार कर छाड़ अनाचार, अनाचार मतलब पाप कर। हमारा संबंध जो भक्तों से होता है वो शरीर का संबंध नहीं है। हर जीव का संबंध कृष्ण के साथ है। जो कृष्ण से संबंधित है उसके साथ संबंध बनाने में बहुत आनंद आता है, वहां सुख होता है। तो इसको यहां जब तक श्रद्धा नहीं होगी कभी नहीं हो सकता है। तो महाराज जी जोलेस गोपाल कृष्ण महाराज कनाडा में वो पेप्सी कोला में जनरल मैनेजर थे बिगिनिंग में। और आप देखिए जहां जब श्रद्धा का अर्थ क्या होता है उसके लिए आप काम करेंगे। आपसे जब श्रद्धा का केवल मुंह पे नहीं है, प्रैक्टिकल है। श्रद्धा का अर्थ है जो व्यक्ति बोलता है उसके अनुसार चलेंगे, उसको श्रद्धा कहते हैं। तो महाराज को जो सैलरी मिलती थी पूरा राजा के प्रभुपाद जी के हाथ में दे देते थे। और प्रभुपाद जी उसमें से $100 निकाल कर उनकी पत्नी को बुला के देते थे घर खर्च के लिए। उसमें $100 में घर खर्च चलता था आराम से, और बाकी सब प्रभुपाद जी प्रचार में लगाते थे। तो महाराज छोड़ना चाहते थे बिगिनिंग। प्रभुपाद जी बोले नहीं, मुझे पैसे की जरूरत है, सोसाइटी मूवमेंट बहुत बिगिनिंग है। तो कहने का अर्थ है निर्बंध कृष्ण संबंध है, युक्त वैराग्य। ये वैराग्य संन्यास है, इसको संन्यास कहते हैं। न चाहे अग्नि न चाहे नाक क्रिया, भगवदगीता में कहते हैं। ऐसा नहीं कि अग्नि को स्पर्श नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। तो आप देखिए महाराज का जीवन, उस समय गृहस्थ थे तो भी सन्यासी थे, तो भी सन्यासी थे, युक्त वैराग्य कहते हैं उसको। तो इसलिए जो महाजन है उनके जीवन जो है भक्तों के लिए उदाहरण है। भक्तों के जो प्रभुपाद जी भारत में प्रचार करने के लिए आए, इतनी श्रद्धा थी प्रभुपाद जी के शब्द पर। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी आप काम छोड़ दो, अभी मुझे जरूरत है। महाराज रिजाइन कर गए तो हम भारत में आ गए। और महाराज को तुरंत ही जीबीसी पूरे इंडिया का बना दिया। पूरे भारत का महाराज जीबीसी थे प्रारंभ में, प्रभुपाद जी के समय, जब कभी फुल टाइम नहीं थे। उस समय फुल टाइम नहीं थे, जॉब करते। तो ऐसे कहने की श्रद्धा का अर्थ है एक्शन लेना, एक्शन लेना। जब व्यक्ति का अज्ञान दूर होता है उसके बाद ही श्रद्धा होती है। जब तक अज्ञान है तब तक हम एसोसिएशन से हमारा अज्ञान दूर होता है, भक्तों के संग से। जब भक्तों के संग से अज्ञान दूर होता है तो उस समय तब श्रद्धा होती है। इसलिए जब भगवद गीता का भगवान वर्णन कर रहे हैं, वर्णन करते 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 18वें अध्याय में कहते हैं, इन 18th चैप्टर, नष्ट मोह स्मृत लब्धम तब प्रसादात्मा। नष्ट मोह अर्जुन योर इल्यूजन। अर्जुन कहता है, भगवान कहते हैं अगर फिर से रिपीट करूं,
नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा ज्ञान दूर हो गया है, नष्ट मोह, माय इल्यूजन इज गॉन, इसमें आई रिमेंबर नाउ, इसमें तो लब्ध था। और हाउ आई रिमेंबर, तव प्रसाद बाय योर मर्सी। व्हाट वाज द मर्सी ऑफ कृष्णा? भगवद गीता। क्या? बिकॉज ऑफ भगवद गीता, नॉलेज ऑफ भगवद गीता, such important knowledge, any time people can become free from all illusions. And then what was Arjuna's realization? I will follow your instruction. I will follow your instruction. Vachanam kar. I will follow your instruction. So कहने का अर्थ है, as long as we are in illusion, in ignorance, it is not possible to follow the instruction of centrally person and Krishna. But by the instruction of centrally person, by the instruction of Krishna, will become free from illusion. Only the medicine, there is no other medicine. जब illusion हमारा दूर होता है, तब ज्ञान होता है, तब वाणी पे श्रद्धा होती है, तब वाणी पे श्रद्धा होती है। दूसरा विश्वास होता है कि एक दूसरे का देखभाल करने से, कैसे हमको लोग ट्रीट कर रहे हैं, कैसे मेरा ध्यान रखते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं। तो जब हम, तब विश्वास बढ़ता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि माँ के पास जब बच्चा होता है, माता पिता के पास, उसे पूर्ण विश्वास होता है कि हमारे पिता माता रक्षा करेंगे, माता पिता रक्षा करेंगे, पूर्ण विश्वास होता है, किसी डरता नहीं है क्योंकि माँ बाप के साथ, तो इसको विश्वास है। इसलिए कहते हैं रक्षत इत विश्वास हो। जब तक हमको विश्वास, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, इस संसार में मेडिसिन जो है, दवा, किसी मरीज को बचा नहीं सकती, नौका डूबते हुए व्यक्ति को बचा नहीं सकती, यदि आपकी कृपा किसी के ऊपर नहीं। यदि आपकी कृपा है तो डॉक्टर बचा लेगा, नौका डूबते हुए व्यक्ति को बचा लेगा, क्योंकि रियल बोट तो आपका लोटस फीट है। इसलिए प्रभुपाद जी, शास्त्र का वचन, मैंने बताया पहले, शास्त्र वचन जो है हमारी माँ के वचन है, वेद माता कहते हैं। पिता पे उतना विश्वास नहीं होता है जितना लोगों को पिता के बाद में विश्वास होता है, जब बड़े होते हैं। लेकिन जो फिर भी माँ के प्रति हमेशा पिता से ज्यादा प्रेम होता है सबका। इसीलिए वेद को पिता नहीं कहा गया, वेद माता का, क्योंकि ज्ञान जो है वेद से जन्म लेता है। तो इसलिए जब हम शास्त्र को, विश्वास कब होगा? शास्त्र अभ्यासनम। जब हम ज्ञान ही नहीं लेंगे तो विश्वास कैसे होगा? आज जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम लोग भी, कम लोग हैं पर मुस्लिम भी हैं, वो प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं, वो ज्ञान से वो कन्विंस होते हैं, तो विश्वास होता है। ज्ञान से कन्विंस होते हैं, तो ज्ञान बहुत जरूरी है। ये ज्ञान है भगवान का संबंध का ज्ञान। जब हमारा इस प्रकार से श्रद्धा होती है, श्रद्धा से भक्तों का संग करते हैं, और साधु संग बहुत नेक्टेरियन होता है, क्योंकि साधु संग श्रवण कीर्तन, और क्योंकि हम लोग प्यासे हैं सुनने के लिए। आप स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्या करते हैं? सुनते ही हैं ना। हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं। पहले पूरे परिवार में माँ से लेकर सबको सुनते रहते हैं, है कि नहीं? और सुनने का मैं दूसरा अर्थ भी बताता हूं, पालन करना। जो सुनते हैं वो पालन करते हैं। इसलिए संस्कृत में कहा गया, श्रवंताम श्रद्धा नित्यम गृणतस्य स्वचेषिता। गृणत का अर्थ है पालन करना। और जो कुछ लोग
जो श्रद्धा जो पालन नहीं करते हैं वो प्रिटेंडर है। सुनते हैं वो प्रिटेंड करते हैं। सुनने का अर्थ है अपने जीवन में उतारना, अपने उतारना। तो जब हम सुनते हैं पहले सुनेंगे। और साधु संग बहुत नेक्टेरियन, क्यों? वो कृष्ण की भाषा है। वो साधु तो केवल रिपीट करता है, भाषा तो कृष्ण की है, शब्द तो कृष्ण के हैं। और कृष्ण में कृष्ण के शब्द में अंतर नहीं है। जब प्रविष्ट कर रेंद है न स्वानाम भाव स्वरूप, जब ये भगवद गीता के शब्द, भागवतम के शब्द हमारे कान में साधु के मुख के द्वारा प्रविष्ट करते हैं, धुनोत समलम, हमारे संपूर्ण अनर्थों को नष्ट कर धुन देते हैं। धुनने का अर्थ है, पहले भारत में धुनकी होती है। कितने लोग धुनकी का नाम सुने हैं? पहले कापूस, कॉटन मशीन नहीं थी, तो वो उसको धुन ठन ठन धुनकी आती थी, लकड़ी की बनी होती थी, वायर होते थे, तो ऐसे ठोकते थे ठन ठन, तो कापूस को पकड़ता है, उसकी गंदगी को धुन कर निकाल देता था, सब एकदम स्वच्छ हो जाते, उसको कहते हैं धुनना। तो वैसे ही साधु की वाणी वो धुनती है, इसको क्रमिक भक्ति कहते हैं। 1 सेकंड में नहीं, हर रोज श्रवण होता है, हर रोज, तो हृदय पवित्र होता है। हृदय पवित्र होता है। जितनी मात्रा में हृदय पवित्र होगा उतनी मात्रा में हमारा विश्वास बढ़ता है। विश्वास उन्हें अपने को अपनाने लगते हैं। विश्वास का अपनाने का अर्थ होता है क्या है? When you accept कृष्ण कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट स्टेप इज डिटैचमेंट। आपको अच्छा नहीं लगेगा, कोई भौतिक रिलेशन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लोग भाग भाग के, देखो रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण है, कितने अरबपति के लड़के थे, लेकिन भाग के आते थे चैतन्य महाप्रभु के पास। ये फेक नहीं है, ये ओरिजिनल रिलेशन है। दौड़ दौड़ के आते थे। उनकी मां ने कहा उनके पिता से, अरे इसको बांध दो जंजीर से, लोहे की जंजीर से। कहते हैं पगली, स्वर्ग जैसी अप्सरा इसकी पत्नी, और स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य इसको बांध नहीं सका, तो तुम सोचते हो कि लोहे का चैन बांध लेगा? जो चैतन्य, और वास्तव में हमारा वही गंतव्य है। हम जब भौतिक रिलेशन अपनाते हैं तो हमारा गंतव्य कहाँ है? मृत्यु है। हर व्यक्ति मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, भौतिक रिलेशन से, भौतिक अटैचमेंट से। इसलिए भगवान कहते हैं गति भरता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुरहित। आपका डेस्टिनेशन, गति मीन्स मूवमेंट, और डेस्टिनेशन आप कृष्ण की तरफ होना चाहिए। हम उधर चले, वही पिता है, माता धाता पितामह है। माता पिता हमारे परिवार, देश, समाज, प्रेसिडेंट क्यों हमारा पालन पोषण करते हैं? नहीं, कृष्ण ही पालक है। वो क्योंकि जो भी संसार में है उनका ही है। इसलिए कहते हैं कि माता धाता, धाता मीन्स पोषण करने वाला, नरिशमेंट, वही करते हैं, वही करते हैं। इसलिए कहते हैं गति भरता प्रभु साक्षी निवासन, वो सबके शेल्टर है, सबका शेल्टर। नित्यो नित्या नाम चेतन से, ये कृष्ण है। तो इसलिए एक झुकाव तभी होगा जब साधु संग होगा। जब साधु संग नहीं होगा बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब हम साधु संग करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता जाता है, क्योंकि साधु के मन की बात में, मन में जो बात है वही जिह्वा पे है, वही उसके आचरण में, उसको साधु कहते हैं। साधु के मन में जो बात है वही वाणी पे आती है, वो अपनी इंद्रियों से वही करते हैं, उसको ही साधु कहते हैं। साधु नहीं बहुत
इल्यूजरी भाषा बोलता है, आपको मिसगाइड करता है। नो, वो साधु नहीं। साधु मीन्स स्ट्रेट चलने वाला, सीधा चलने वाला। तो इसलिए सीधा को जो वो कृष्ण के विषय में सोचता है, मन मना भाव मद भक्त हो कृष्ण के विषय में सोचता है, उसके जीवा पे कृष्ण की बातें आती हैं और इंद्रियां सब जो है कृष्ण की सेवा में एंगेज रहती है। और ये चीजें क्योंकि हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, इसलिए बहुत प्लीजिंग है सबको, बहुत प्लीजिंग। नहीं तो क्यों बोलते। सूत गोस्वामी वो जो नैमिषारण्य में जब जैसे पधारे, उपस्थित हुए सूत गोस्वामी एंड ऑल द saintly persons, they were performing sacrifice since time, so many, maybe 1000 years. कहते हैं वयम तू नम वितृप्याम उत्तम श्लोक विप्र में श्रवंताम रस ज्ञानम, रस बेलो स्वाद स्वादु पदे, वेरी वेरी नेक्टेरियन। प्लीज गो ऑन रिसाइटिंग, गो ऑन रिसाइटिंग। उनका उन लोग का कंक्लूजन था, हमको दूसरा नहीं सुनना है। आपने जो सुखदेव गोस्वामी सुन के आया वही रिपीट करो, वही रिपीट करो। इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एटलीस्ट साधु का थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए। कौन साधु है, कौन असाधु है। आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले आना है तो आप सब्जी मार्केट में जाके सब्जी वाले से नहीं पूछते हैं कौन सा एजुकेशन अच्छा है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छा है। एटलीस्ट थोड़ा आपका बेसिक ज्ञान होता है। जो एजुकेटेड आदमी होगा उससे एडवाइस लेंगे, डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। सेम चीज जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, इस प्रकार से हमें ज्ञान होता है। इसलिए बहुत है, जब ये आसान, बहुत कठिन नहीं है संसार को छोड़ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पर जिसका झुकाव साधु के साथ है वो बहुत सरल है, वो आराम हो जाता है। ये संसार को छोड़ना कष्टकारक नहीं है, उसके लिए तकलीफ है, दुख है, जो संसार को सब कुछ उसके परे कुछ नहीं जानता है। जिसको कृष्ण गुण ज्ञान, जो भगवान के गुणों को, भगवान के रूपों को साधु के मुख से सुनता है, तो वो तो सोचता है कि मैं संसार को छोड़ने से, जैसे भागवतम वर्णन है अबाउट महाराज भरत। महाराज भरत कहते हैं, वहां वर्णन है, वहां सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, उत्तम श्लोक लालसा, मलवत उत्तम श्लोक लालसा। मलवत शब्द यूज करते, मल का अर्थ है स्टूल। कहते हैं जैसे स्टूल पास करके कोई आदमी लाइमेंट करता है, मैंने स्टूल पास कर दिया, कोई लाइमेंट करता है, कोई रोता है, उसको आराम हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। जो नहीं पास करता है वो दवा लेके पास करता है, पैसा खर्च कर, कितना आराम हो जाता है। उसी प्रकार से कहते हैं महाराजा भरत के पास पूरे पृथ्वी के राजा थे, बहुत सुंदर पत्नी थी, 24 साल की उम्र थी, बच्चे थे सुंदर सुंदर, और उनका कोई शत्रु नहीं था, इतने पावरफुल थे। कहते हैं भगवान उनकी भक्ति की लालसा ऐसी थी कि ये अपने राजपाट को कैसे छोड़े, जैसे आदमी स्टूल पास करते, ऐसे कोई तकलीफ नहीं, रोता नहीं। इसलिए लोगों को बैराग में आनंद आता है, सुख है। नहीं तो क्यों लाल कपड़ा पहने, सुख हुआ तभी नहीं। क्यों लाल कपड़ा पहन लिया आपने, क्यों टकला करा लिया। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर थे। एक लंगोटी क्यों पहन लिया, कोपिन। इसका अर्थ है वो मिनिस्टरशिप से ज्यादा उनको आनंद मिलता था, है कि नहीं। नहीं क्यों छोड़ेगा भाई कोई, क्योंकि इस आनंद का बोतल हमने नहीं खोला है, हमने टेस्ट नहीं किया है।
आप लोगों को भी कुछ आनंद तो है, नहीं तो आपने पैंट टी शर्ट क्यों छोड़ के पहने हो, धोती कुर्ता, तिलक क्यों लगाए हो, है कि नहीं? स्टूडेंट जो आजकल के हैं, बुढ़े लोग को भी पैंट टी शर्ट छोड़ना बहुत मुश्किल आ जाए। अब माताएं हैं, हमारी माताएं हैं, अब माँ भी है, तो भी आज इतने वेस्टर्न ड्रेस से अटैच हो गई है, साड़ी भी नहीं पहनना चाहती, है कि नहीं? देखिए, आपको आनंद आता है कि कुछ दिन समय मिले, हम धोती कुर्ता पहनूं, तिलक करूं, मंदिर चलूं, है कि नहीं? यह है अनुभव, ये प्रैक्टिकल इसको कहते हैं। ये भक्ति केवल ब्रेन में नहीं होती है, भक्ति मीन्स डे टू लाइफ। हर, जैसे हम अब खाते पीते ऐसे हर भक्ति जो है अपने हर जीवन के प्रतिदिन अपने जीवन में अपना सकते हैं, प्रतिदिन अपना सकते हैं, क्योंकि हमारा खाना, बोलना, चलना, बातचीत करना सब कुछ आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, स्थित प्रज्ञ से का भाषा किन प्रभाषित प्रज्ञित की। जो भक्ति में फिक्स है, दृढ़ है, उसकी पहचान होगी, कैसे बोलता है, कैसे चलता, चलने का मतलब आचरण, कैसे उठता बैठता है। और वो ऐसा नहीं वो प्रिटेंडर है ना, उसको उसमें बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। हमारे मंदिर में एक लड़की थी, तो उसको शादी करने के बाद उसने, वो तो मैट्रिक किया था केवल, तो उसका भाग्य था पूर्वजन्म का, आ गई फुल टाइम। और हिंदू लड़की रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो उसका भाग्य रहा होगा, हम भी एक्सेप्ट कर लिए उसको। तो गुरु महाराज हमको बोले कि ये तुम्हारी लड़कियां हैं, इसकी शादी कर देना। तो उसका इतना अच्छा भाग्य था, गुरु महाराज की कृपा थी। अमेरिका में ट्रेवल कर रहे थे, तो एक उस समय रवि गुप्ता थे, अभी हैं राधिका रमन प्रभु, आप जानते हो, यूटा यूनिवर्सिटी के डीन हैं। आपकी उम्र क्या है? 20। आप क्या कर रहे हो? BSc कंप्यूटर साइंस। हाँ, वो 20 साल की उम्र में PhD कर लिए थे। उनका लड़का है, उसका नाम है, गुरु महाराज ने रखा है चैतन्य। वो 14 साल की उम्र में उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, अभी 14 साल का है। 2 मिलियन स्टूडेंट कंपटीशन में एडमिशन के लिए भाग किए, वहां परीक्षा दिए, टेस्ट। उसमें 80% लोग को पास हुए, और उसमें से 5% को 95% मार्क मिला। उसमें एक लड़का यह था, इनका लड़का 95%, 14 साल। तो हमारे साथ बहुत, क्योंकि हमारे मंदिर की लड़की से उससे शादी हुई, तो रिलेशन बहुत अच्छा है। तो मैं उनको पूछा, बट हम फोन पे बात हुई, फोन किए, कंग्रेचुलेसन मैसेज। तो मैं वो बोले कि तो बच्चा तो अभी छोटा है, तो अभी पास हो गया तो एडमिशन तो होना पड़ेगा, तो कोई यूनिवर्सिटी मना नहीं कर सकती है। लेकिन जब वो 14 साल के फिर से हो, तो नहीं, इसका री इंटरव्यू लेना पड़ेगा। उसे उसके पिताजी जहाँ डीन है राधिका रमन प्रभु यूटा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ ही उसने सिलेक्ट किया, घर से नजदीक है, पिता के साथ चला जाऊंगा। तो फिर से 5 प्रोफेसर इंटरव्यू लिए, फिर वो पास हो गया सबके साथ, एडमिशन ले लिया, एडमिशन हो गया। तो भक्त ना बहुत दिमाग बहुत तेज होता है। तो वो तो डीन है, मैं उनको पूछ रहा था कि जब वो 20 साल की उम्र में प्रोफेसर हो गए, पहली बात तो कभी स्कूल नहीं गए, उनकी माँ ने होम स्कूल में पढ़ाया। अभी ये बच्चे भी होम कभी स्कूल नहीं देखा, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी। तो जब राधिका रमन प्रभु वो जब इंटरव्यू में, क्योंकि उन्होंने टॉप किया इंग्लिश में, आप समझ, इंग्लिश से, और कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी गए नहीं, तो प्रेस रिपोर्ट ने पूछा कि आप तो कभी घर में रहे,
आप कैसे, इतनी अच्छी इंग्लिश है। तो अपने वो थैले से भगवत निकाल के दिखाया, मैं ये डेली पढ़ता हूँ, वो डेली पढ़ता हूँ। आप सुनो, बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, बहुत अच्छा। तो मैं उनको पूछा कि ये आप स्टूडेंट हैं, आप कैसे डीन हो गए? क्योंकि हम गया उनके यहाँ अमेरिका, तो हमको यूनिवर्सिटी अपना ऑफिस दिखाने के लिए गए। यंग है, बहुत यंग है। तो बोले कि मैं भक्त हूं ना। मैं बोला ये तो मैं जानता हूं आप भक्त हो, लेकिन ये पूरे सभी प्रोफेसर हैं अमेरिकन, आप केवल एक हो इंडियन, आपको ये पोस्ट कैसे डीन की मिल गई? पहले वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जीव गोस्वामी पे PhD किया है उन्होंने। इसे 60 संदर्भ पे लेक्चर देते हैं, आप सुनेंगे तो तो वो बोले कि सभी लोग जितने यहाँ विदेशी प्रोफेसर सब मेरे पास आते थे, सब बोले प्रभु तो उनको नहीं बोलते थे, सर आप इस पोस्ट को अप्लाई करो, आपको जरूर मिलेगी। सब डरते थे कि दूसरा कोई डीन आ जाएगा तो सब प्रॉब्लम होगा। सबको हेडेक बन जाएगा, किसी को निकाल भी सकता है। और ये मतलब DOT, मैं बोला क्या DOT का? हाँ, DOT में टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस नम्रता, जिसमें नम्रता टॉलरेंस है वो ही मैनेज कर सकता है। हमारे गुरु महाराज नम्रता और टॉलरेंस के पर्सनिफाइड थे, वो मूर्ति थे सहन शक्ति के और नम्रता के। हमने ऊंची आवाज में बोलते उनको कि वो लेक्चर में ही दहाड़ते थे कभी कभी, लेकिन ऐसे डीलिंग में कभी भी नहीं, कमांडिंग वर्ड नहीं यूज करते। कमांडिंग वर्ड पर उनका शब्द जो है इतना पावरफुल होता था, किसी को कुछ बोल देंगे वो उसके हृदय में बैठ जाता था। कोई भी इवन जो उनकी बात को नहीं पसंद करता था उसको भी बोलते थे ना, वैसे बोलेंगे मीठे शब्द में, वो कभी भूलेगा नहीं। और प्रचार में तो उनको बहुत ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एक वर्ड बोल दिए लोग मान लेते थे। हमको याद है एक बार, उनका डिटर्मिनेशन बहुत था प्रभुपाद जी के प्रति, बहुत ही। जब तक इस टाइप का डिटर्मिनेशन है, ये उदाहरण है, ये उदाहरण केवल मुक्त पुरुष में दिखाई देते हैं। जो शारीरिक भावना से ग्रस्त है, ये डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता। कभी उधर ध्यान जाएगा, कहीं परिवार पे ध्यान जाएगा, आसान है। तो जैसे मैंने कहा कि प्रभुपाद जी ने जो कहा, तुरंत 1 सेकंड में सोचा भी नहीं, तुरंत छोड़ दिए, तुरंत छोड़ दिए, पूरी प्रभुपाद जी की सेवा में लगे और अंत तक प्रभुपाद जी की सेवा की। डिटर्मिनेशन उसको कहते हैं, जीवन पर्व। यही कृष्ण प्रेम है, क्योंकि प्रेम के बगैर कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता है। प्रेम रोना नहीं है, प्रेम जमीन पे लौटना नहीं है। इमोशन प्रेम नहीं है, प्रेम एक्शन होना चाहिए। तो मां बच्चे से प्रेम करती है, उसका स्टूल साफ करती है, बीमार है तो भी कुकिंग करती है। बच्चा बीमार है तो वो बीमार हो जाती है, बच्चा खुश है तो खुश होती है। और इसको क्यों? प्रेम है। उसी प्रकार से जब कृष्ण प्रेम प्रकट होता है तो आदमी सो नहीं सकता है। आप लोग एक वीडियो देखे थे, बड़ा सोते हुए भी स्वप्न में भी आरती करते थे, देखा है आप? कितने लोग देखा है? तो कहते हैं आदमी के सिम्टम से, लक्षण से, कार्य से ये पता चलता है कि ये आध्यात्मिक जीवन के किस, और वही हमारा जीवन है। तो जो आपका जीवन है आपने कितनी मात्रा में अपनाया है, ये तो साधु उदाहरण होगा ना। वही उदाहरण जो है हमारे जीवन को प्रभावित करता है।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यू हैव एनी क्वेश्चन? आप लोग के पास कोई प्रश्न है? यू कैन आस्क इन इंग्लिश, इवन इन गुजराती, बट आई डोंट नो। आई कैन अंडरस्टैंड बंगाली, नॉट उड़िया। फ्रॉम उड़ीसा। जगन्नाथ जी की कृपा। जब हम भक्ति में नए आते हैं तो हमें धोती कुर्ता पहनना अच्छा नहीं लगता, शर्म भी आती है। लोग क्या कहेंगे, डर लगता है। हम माला कर लेंगे, गीता पढ़ेंगे, परंतु धोती कुर्ता पे विश्वास नहीं आता है। क्या करना चाहिए? क्योंकि भक्ति ड्रेस पे, भक्ति आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। तो ये आत्मा का स्वभाव आपके ड्रेस पे डिपेंड नहीं है। आप समझ रहे? ड्रेस, जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, पढ़ने के बाद हर आदमी एजुकेशन यूज करता है। इंजीनियर भी यूज करेगा, डॉक्टर भी यूज करेगा, और आपके प्रोफेशन के अनुसार आपका ड्रेस होता है। देखिए, एक टीचर होता है, टीचर का ड्रेस अलग होता है, वो टीचिंग करता है। तो ड्रेस भक्ति में बाधा नहीं है। कोई ड्रेस बन के साधु नहीं हो सकता है। आप समझ रहे? लेकिन ये तो सत्य है, जब हृदय परिवर्तन होता है, ये इस ड्रेस को लोग आलिंगन करते हैं। तिलक के बगैर मुख नहीं दिखाएंगे। जब आपके हृदय में परिवर्तन आएगा, जब तक परिवर्तन नहीं आया है, जबरदस्ती ड्रेस मत पहनो, भक्तों में पहनिए। और कभी इच्छा नहीं है, फिर सब भक्त बोल देते साधु आप धोती कुर्ता पहन लो, इसको वैदिक भक्ति कहते हैं। जो प्रभु जी ने लिखा है उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। कि हमको पसंद नहीं आता है, चैंटिंग कर लेंगे, तो वैदिक भक्ति कर देते थे। तो कहते हैं यत्र रागान अवक्ताम प्रवृत्ति उपजायते शास्त्रे न शास्त्र से वैदिक भक्ति उच्यते। कहते हैं जहां स्वाभाविक अटैचमेंट नहीं है, तो वो व्यक्ति साधु के आदेश से चलता है। तो भक्त कह देता है आप तो पहन लो, मंदिर में तो पहन लो, लोगों से मिलने जाना मत पहनना। आप समझ, क्योंकि बॉडीली प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग है। मैं ड्रेस पहनता हूं तो मेरे एक एक अंग प्रकट होते हैं। मैं लड़की को अट्रैक्ट करता हूं, उनको अट्रैक्ट करता हूं, इसलिए हम सजाते हैं ना। बाल इस साइड का स्टाइल, वो स्टाइल, ये ड्रेस ऐसे ऐसे नया नया फैशन क्यों निकलता है? अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए। लड़कियां बॉय का ड्रेस पहनेगी, लड़की को अट्रैक्ट, जब तक लड़की का ड्रेस पहनेगी वो कम अट्रैक्टिव होगी, और लड़के का ड्रेस पहनती है ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये जो ड्रेस है सबको अट्रैक्ट करने के लिए, उसी प्रकार धोती कुर्ता भगवान को अट्रैक्ट करता है। जब महाराजा प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु को मिलना हुआ तो राजसी ड्रेस में नहीं गए। सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय एडवाइस दिए रथ यात्रा के समय तो धोती कुर्ता पहन, वैष्णव तिलक किए, सब वैष्णव को प्रणाम किए। इसके बाद गार्डन में एंटर किए, चरण दबाते हुए दशम स्कंद का श्लोक गोपी गीत पढ़ना प्रारंभ किए। तो राजसी ड्रेस नहीं गए। अगर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण थे, उनको राजसी ड्रेस पसंद नहीं था, इसलिए कृष्ण प्रत्याते भोग त्याग है। भक्ति का एक लक्षण है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने आनंद को त्यागना है। आपने चाय छोड़ा भगवान की प्रसन्नता के लिए, आपने मांस छोड़ा भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमने टकला कराया भगवान की प्रसन्नता, अपना आनंद। किसी को बाल तो बहुत अच्छा, कितना पैसे लोग खर्च करते हैं,
एक थोड़ा बाल पकने लगे टेंशन हो जाता है, वो देखना भी नहीं चाहते, कलर करा लेते हैं। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए आप टकरा कराते। तो धोती कुर्ता अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये होना चाहिए भगवान को प्रसन्न है। पुलिस में पुलिस का ड्रेस सबको कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भाई पुलिस हो तो हमारे बॉस को प्रसन्न करने के लिए पहनना पड़ेगा। तो भक्ति का अर्थ है यही, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारा सदाचार होता है, ड्रेस हर चीज होना चाहिए। हाँ, बिगिनिंग में भक्त के ऊपर श्रद्धा है, इसलिए हम नहीं चाहते हुए उनकी बात मानते हैं। बच्चा नहीं चाहता स्कूल जाना, लेकिन माँ के साथ प्रेम है, पिता के साथ, माँ बेटा स्कूल जाओ, तुम्हारे लाभ के लिए, इसलिए हो जाता है। उसी प्रकार से हमको बहुत चीजें नहीं अच्छी लगेंगी, क्योंकि हम मटेरियल भाव कॉन्शियसनेस से अटैच है, मटेरियल कॉन्शियसनेस है, मटेरियल अटैचमेंट है। लेकिन जब साधु के संग करेंगे, उनका विश्वास होगा, तो साधु अपनी वाणी से भिद्यते हृदय ग्रंथि छिंदते सर्व संसार, वो नाट जो है टूटेगी, हमको अच्छा लगेगा। उसी को नहीं अच्छा लगता है, वही आदमी को बहुत अच्छा लगता है। तो ये वैकुंठ ड्रेस है। आज जो इसको हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, ये भौतिक जगत का कार्य नहीं। ये वहां वैकुंठ लोक में थोड़ी निर्वस्त्र कोई रहता है, वहां भी ड्रेस पहना जाता है, पर वहां ट्राउजर नहीं चलता है। वहां वही जो हम लोग अभी पहने आप सर है। तो ये ट्रांसडेंटल ड्रेस है, इसका सम्मान होना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए कि मैं धोती पहना हूं। आप देखो मुस्लिम लोग कितना स्ट्रिक्ट है, फैनेटिक है, कि मर जाएंगे बुर्का नहीं निकालते है। अपने हिंदू लोग इतने कच्चे हैं कि वो एक सेकंड में जैसे गिरगिट होता है ना, कितना रंग बदलता है। हमारे हिंदुओं में ऐसा, केवल हम नाम से हिंदू बोलते, कहते हैं गर्व से कहो हिंदू है, पर गर्व नहीं। क्यों ऐसा है पता है? कौन उत्तर देगा? क्यों हिंदुओं को विश्वास नहीं है? क्यों डिटर्मिनेशन नहीं? क्योंकि अपन का शास्त्र है, भगवत गीता पढ़ते नहीं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपके सनातन धर्म की महिमा का पता नहीं चलेगा। जब हम पढ़ते हैं, तो आप लोग पढ़ा है, महिमा पता चली, इसलिए आप यहाँ ज्वाइन हुए हैं। तो हिंदू लोग पढ़ते नहीं हैं, वो केवल पैसा गिनते हैं, नोट खूब गिनते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं, इसलिए प्रचार की आवश्यकता है। एनी अदर क्वेश्चन? कोई दूसरा प्रश्न है? हरे कृष्ण गुरु जी, प्लीज गुरु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप अफ्रीका में प्रीच किया आपने इतना 7 टेम्पल्स, बिग टेम्पल्स, तो ये आप जैसे अफ्रीका में लोग, जैसे यहाँ पे तो लोग सुनते हैं एटलीस्ट कि हाँ कृष्णा राम, बट वहां पे तो किसी को पता भी नहीं है कि क्या है स्पिरिचुअलिटी, क्या है। तो आपने कैसे वहां पर प्रीच करा इतने? प्रभुपाद जी, 2 प्रश्न है। देखिए, बच्चे को माँ बोलती है बेटा चल, विश्वास हो, चलने लगता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है। हमारे गुरु महाराज ने आदेश दिया कि तुम जाके केनिया में लाइफ टाइम रहो। तो विश्वास था हमारा, तो मैं तो नया भक्त भी था, दीक्षा लिए हुए 1 साल ही हुआ था, 2 साल, लेकिन जो विश्वास है तो बहुत बड़ी, उनके विश्वास पे गया। विश्वास में ताकत होती है। आप समझ, भक्त साधु जो है भगवान के प्रतिनिधि है, जब उनकी बात पे विश्वास होता है तो ताकत तो ऊपर से ही आती है। आप सुनो, दूसरा क्या है? दूसरा प्रश्न, वो रामकृष्ण को जानते नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो सोया हुआ है व्यक्ति, उसको जगाना आसान है,
जो सोने का नाटक कर रहा है उसको दिखाना मुश्किल है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए वो आसान है, जो जानते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो उसी प्रिंसिपल पर जब आप चलेंगे तो कुछ उपलब्धि होगी। आप बैठे रहेंगे तो आपका जीवन आराम से रहेगा, तकलीफ नहीं होगी, भोजन मिलता रहेगा, सोते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप चलना चालू करेंगे तो आपको ठोकर भी लग सकता है, रास्ते में गड्ढे भी आएंगे, चैनल भी होगा, कांटे भी झुक सकते हैं। लेकिन चलना है तो ये सब समस्या का तो सामना करना पड़ेगा। तो समस्या से व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, समस्या को। और भक्ति तो ऐसे है कि सब समस्या का समाधान तो भक्ति ही है। सब समस्या का समाधान भक्ति है। तो जो भक्ति के रास्ते पर चलता है, तो जब भौतिक सफलता मिलती है चलने से, तो आध्यात्मिक तो 100% पर फिक्स है। जैसे आप यहां दो साइड का रिजल्ट नहीं है। भौतिक जगत में आप पढ़ रहे हैं तो चांसेज है आप फेल भी हो जाएंगे, पास भी हो जाएंगे। लेकिन भक्ति में फेल होने का प्रश्न नहीं है। वन ट्राइप, दोनों साइड का ट्रैफिक नहीं होता है, एक ही रिजल्ट होगा, आपको सफलता ही मिलेगी, असफल हो नहीं सकते। हो सकता है कुछ समय के लिए आप रुक जाएंगे, लेकिन आप नीचे नहीं जाएंगे, जहां रुके वहां से ही स्टार्ट करेंगे। इसलिए भक्ति में किसी का पतन ना अस्खलन भी चाहिए, किसी का पतन नहीं होता है। तो इसलिए मैं तो महाराज ने आदेश दिया, वहां हो तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, हर आदमी तो कर रहा ही है। आप कुछ करेंगे तो नहीं ज्यादा तो कुछ तो मिलेगा ही, इसलिए हमको थोड़ा बहुत तो मिला है। आप समझ रहे हैं, यही है। हमने सफलता के लिए काम नहीं किया, आदेश पालन के लिए बस। सफलता मिले या ना मिले वो अपना कोई फायदा, वो सफलता से मुझसे मतलब नहीं। संस्कृत में दो शब्द है, श्रद्धा और लोलुप। श्रद्धा से लोलुप का जन्म होता है। श्रद्धा ही सब कुछ है, श्रद्धा पे ही बोल रहा है। आपके पास विश्वास है तो आपको सब कुछ मिलने वाला है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। आप बैठे रहेंगे, मंदिर भक्तों का संग करेंगे, कुछ करेंगे, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं, आगे बढ़ नहीं पाए। मेरी ये फिलॉसफी है, काम काम को सिखाता है। आप पढ़ना नहीं जानते, पढ़ेंगे तभी आपको आए, है कि नहीं? वैसे ही भक्ति में सेम है। जब चैंटिंग करेंगे तो चैंटिंग सिखाए। आपको नाचना है तो नाचो, भाव में जरूरत नहीं है। नाचना है तो नाचो, तब नाचना आ जाएगा। काम करने से काम आता है। जो कि क्लियर। दूसरा कोई प्रश्न है? क्योंकि अभी 5 मिनट और समय है। नहीं हो तो 5 मिनट कीर्तन करें। अच्छा, यहाँ आवाज बहुत आती होगी, तो अफ्रीका के प्रचार के बारे में अच्छा, अफ्रीका का प्रचार। अफ्रीका, जब अफ्रीका का लोग सुनते हैं नाम तो डर जाते हैं, क्योंकि अफ्रीका ऐसा देश है, अभी तो बहुत, अब इंडिया अफ्रीका में पूरे विश्व में सब जगह एक ही जैसा हो गया है। सब जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सब जगह इंजीनियर डॉक्टर्स हैं। पहले जब क्रिश्चियन लोग प्रचार करने आए, ये रिकॉर्ड मत करिए नहीं तो लोग गाली देंगे। पहले जब क्रिश्चियन में प्रचार करने आए वो अफ्रीका में क्रिश्चियन लोग, तो मैं ऐसे सुना हूं, वो सफेद देखे तो उनको खा लेकिन ये काम कितना सत्य है नहीं सत्य है, लोग हो सकता है जोक्स में बोलते होंगे, आप समझ रहे हैं ना। पर एक चीज मैंने देखा, अपना अनुभव, पर्सनल अनुभव, भारत के लोगों से अफ्रीकन लोग ज्यादा इनोसेंट है, इसलिए उनको फॉरेनर लोगों ने बहुत चीटिंग किया है।
अफ्रीकन लोग इतने इनोसेंट हैं, सब वहां से सोना उठा के ले गए, डायमंड उठा के ले गए। है उनको वहां नेचुरल रिसोर्सेस बहुत है, बहुत है। तो उनको लोगों ने चीटिंग, दूसरे देश वालों ने बहुत चीटिंग किया, अमेरिका हो, यूके हो, चाइना हो। भारत का स्वभाव चीटिंग का नहीं है, क्योंकि भारत के लोग भी चीटिंग किया है। हमको लोग बताते हैं कि जो 2 जूते हैं, तो एक जो लिखा है 20 रुपया, मान लो 40 रुपया, तो आएंगे तो बोलेंगे एक इसका 40, इसका 40, आप 35 रुपया दे दो। तो वो 40 का कीमत है, तो कहते हैं इसका 40 का 40 मतलब 80 हो गया। तो कहते 35, तो बहुत खुश हो जाता था, ये तो आधा से भी कम प्राइस मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे बहुत, क्योंकि ये संसार में जो इनोसेंट होते हैं उनको ही लोग चीटिंग करते हैं। आप समझ रहे हैं? धर्म इनोसेंट, अब इनोसेंट बेचारे दूसरे की बात को मान लेते हैं। भक्ति में भी है ना, इनोसेंट को हम प्रचार करते हैं, तुरंत एक्सेप्ट करते हैं। तो कैसे उनको मिल रहा है? तो अफ्रीका में प्रभुपाद जी का पावर, प्रभुपाद जहां गए वहां वो सब जगह तीर्थ स्थान हो गया। भवद विदा भगवत तीर्थ भूतम स्वयं भूत। महाराज कृष्ण कहते हैं कि जहां भगवान के महान भक्त जाते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान हो जाता है। तो प्रभुपाद जी तो गए लेट, पहले ब्रह्मानंद जी को भेजे। ब्रह्मानंद जी वहां हरिनाम करते थे, बहुत पावरफुल थे ब्रह्मानंद। और प्रभुपाद जी के वास्तव में सोल्जर थे ब्रह्मानंद। जितने भी आप प्रभुपाद डिसाइपल देखेंगे वो सब साधारण नहीं थे, वो साधारण नहीं थे, वो असाधारण कार्य करते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी के आदेश का पालन करते थे। आदेश इंपॉर्टेंट है। जैसे मेजर जो आदेश देगा ना, तो लोग सोल्जर उसके जो है अपना जान दे देते हैं कि नहीं, फाइटिंग कर लेते, तो उसको बोलते हैं वीर गति को प्राप्त किया। प्राप्ति करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तो आदेश इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल वॉरियर थे प्रभुपाद डिसाइपल्स। अभी हम लोग तो वास्तव में हम लोग तो इस्कॉन में इतना आनंद है, कल्प वृक्ष है इस्कॉन, अभी कल्प वृक्ष है। प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद जी जीवन तो आप जानते हैं कैसे स्टार्ट किया, आप लोग पढ़े हैं। आज के इस्कॉन में अंतर, कोई पहले गाड़ी टैक्सी में नहीं बैठता था, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। आज बहुत कॉमन है, हर मंदिर के पास बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतना है। लेकिन वो गाड़ियां भगवान की सेवा के लिए हैं, वो दोष युक्त नहीं है, लेकिन पहले साधन नहीं थे। मैं गया जब 1989 में, तो 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर डेली में चलता था प्रचार, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रचार के लिए, क्योंकि गाड़ी नहीं थी। आप सब, लेकिन हम कभी फील नहीं किया। आज भी मैं 6-7 किलोमीटर चलता हूँ हेल्थ के लिए। तो चलना कोई दोष युक्त नहीं है, नहीं चलना तकलीफ है, चलने से बीमारी नहीं आती है, नहीं चलने से बीमारी आती है। तो कहने का ये अर्थ है। तो मैं ऐसे तब ब्रह्मानंद गए तो प्रचार करते थे, तो हर नाम करते थे सब, लेकिन लेक्चर इंडियन में देते थे। जब प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद के बड़े बड़े इंडियन आ गए, वहाँ गरीबी है, प्रभु जी बताया गरीबी है, लोकल में थी। अभी तो लोकल लोग भी पैसे वाले हैं, उस समय इंडियन लोग बहुत रिचिस्ट थे। जब 2 जूता का 80 बोल देंगे 40-40 वाले को, तो पैसा तो बनाएंगे ही नहीं। आप समझ रहे? तो ऐसे ही पैसे लोगों ने बनाया। बिजनेसमैन तो ऐसे ही बनाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं इंडियन को प्रचार करने नहीं आया हूं। इंडिया में तो बहुत इंडियन है,
मैं तो लोकल को प्रचार करने आया। तो लोकल लोग बहुत इनोसेंट, ब्रह्मानंद बाहर आए, हरे कृष्णा बोलने लगे और लोकल लोग सब आकर के प्रभुपाद जी के लेक्चर में बैठ गए रोड पर से। प्रभुपाद जी लेक्चर, वहां यूनिवर्सिटी में प्रभुपाद जी लेक्चर दिए। प्रभुपाद जी बहुत गाइड किए, ब्रह्मानंद प्रभुपाद डिसाइपल को बहुत मेहनत किए। लेकिन मेजर रोल जो यात्रा को सफल करने वाले पर्सनालिटी हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज। इस प्रकार से मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा था ईस्ट अफ्रीका में, स्पेशली नैरोबी केनिया में। लेकिन ब्रह्मानंद जब वहां से छोड़े, दूसरे लोग छोड़े, तो बहुत पतन हो गया। समय ऐसा आ गया कि ठाकुर जी के लिए भोग लगाने का पैसा नहीं था, सब्जी खरीदने का, लाइट बिल नहीं पे कर पाते थे। मैं खुद देखा हूं 89 में। तो 82 में 1982 में उरुकम प्रभुपाद टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जीबीसी को लेटर लिखा कि ये नैरोबी टेम्पल बंद हो जाना चाहिए, ठाकुर जी को भोग नहीं लग रहा है, क्या फायदा। तो महाराज जीबीसी में थे, तो कहे कि प्रभुपाद जो भी टेम्पल बनाए हैं वो बंद नहीं होना चाहिए। तो जीबीसी ने कहा उनको ही टेम्पल बना दिया, जीबीसी कहते आप ही जीबीसी, उनको ही सौंप दिया। चैलेंजिंग काम, जहां प्रसाद नहीं भोग। महाराज 1982 में जीबीसी बने हो, उसके बाद जाना प्रारंभ किए। तो महाराज कहते हैं जहां महाराज जाते थे लक्ष्मी साथ में जाती है। गोपाल कृष्ण महाराज जहां जाते थे, इसलिए वो लोग जहां भी जीबीसी हैं थे, कोई टेम्पल कोई सफरिंग नहीं करता था, चाहे इंडिया हो विदेश हो कहीं भी। हाँ, कहते हैं जत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्टनर, यहाँ भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण है, वहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां अनीति नहीं। महाराज हमेशा नीति की चल रही, और सफलता उनकी कदम को चूमती, क्योंकि उनका मिशन एक ही था, प्रभुपाद जी का मिशन। उनका कुछ पर्सनल मोटिवेशन नहीं था, केवल सेवा का भाव था। इस प्रकार से होते होते जहां ठाकुर जी को भोग नहीं लगता था, महाराज के कृपा से इतना डेवलप हुआ। नैरोबी टेम्पल आप जाएंगे, महाराज खुद कहा करते थे हम कि ऐसे इंडिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल नैरोबी टेम्पल, जहां भोग नहीं लगता था। प्रभुपाद जी ने खुद राधा बांके बिहारी को लेकर प्राण प्रतिष्ठा किया। प्रभुपाद जी की वाणी थी कि नैरोबी विल बी जूल ऑफ अफ्रीका, नैरोबी पूरे अफ्रीका का डायमंड होगा, ये प्रभुपाद जी बोल दिए थे। और वो तो भोग लगने का पैसा नहीं है, तो महाराज जब गए वहां तो प्रचार चालू किया, लोगों को मिलना चालू किया, बात करना चालू किया। तो धीरे धीरे तब मेरा सौभाग्य था कि मुझे भी सेवा मिली। तो इस प्रकार से अभी आज स्थिति ऐसी है कि वहां जैसे आपका ये बेज बोलते हैं, ऐसा बेज है, भाड़े पे है। तो हमारे टेम्पल के नजदीक में ही 1 मिनट का रास्ता है मंदिर से। जितनी अराउंड टेम्पल की प्रॉपर्टी है सब खरीद लिया टेम्पल, सब 200 भक्त अराउंड रहते हैं, इनिशिएटेड ड्यूटी। और बेज भी बगल में है, तो बेज खुद की प्रॉपर्टी है। वहां एटलीस्ट 100 स्टूडेंट की व्यवस्था है, 60 to 80 स्टूडेंट रहते हैं लोकल, 101% लोकल लोग, एक भी इंडियन नहीं। वो भी सब, कोई मेडिसिन कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई ये कर रहा है। तो आपका कल्चर है भारत का, इसलिए बहुत एडवांस हो। तो वहां उतना फोर्स नहीं होता है कि कोई धोती कुर्ता पहने, जिसकी इच्छा है धोती पहनने, जिसकी न इच्छा है वो अपने नॉर्मल कपड़े में भी रहे। ये 4 नियम सबको पालन करना है, और कम से कम 4 माला जप करना है। और प्रसाद तो कुक है, सब प्रसाद बनाता है, ऐसे सिस्टम, वहां से भक्त बनते हैं ऐसे। तो आप सोचो
पूरे महाराज की कृपा से। और इतना ही नहीं, जहाँ खुद सब्जी का पैसा नहीं था, फोन में महाराज का जो भी प्रोजेक्ट, जैसे दिल्ली प्रोजेक्ट में नैरोबी ने, केनिया ने पार्थसारथी को 3,50,00,000 रुपए का हेल्प किया था। अभी जो गुरुकुल बना है एटलीस्ट 40% तो वहां के पैसे से बना, वृंदावन गुरुकुल। अभी भी 20 लाख हर महीने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आता है। अभी महाराज बोले थे कि बनाना है, हमको बोले राधाकांत को मिलाया कि हाँ हेल्प करो। मीरा रोड में भी, मोहम्मदाबाद में भी अभी एक भक्त ने नैरोबी का 3.5 करोड़ गौशाला के लिए दिया। सूरत में 11 करोड़ 11,11,111 दिया एक ही आदमी ने। TOBP में अब महाराज हमको बोले था कि वहां से हेल्प करना, महाराज आदेश दिए तो $1.5 मिलियन, एक ही आदमी $1 मिलियन दिया। तो कहने का है ये महाराज का, ये सब श्रेय महाराज को जाता है। आप समझ रहे, ये श्रेय महाराज की लीडरशिप, महाराज की कन्विंसिंग पावर। क्यों खुद कन्विंस है वही कन्विंस कर सकते हैं। आपसे जो आदमी खुद कन्विंस है, खुद कन्विंस का मतलब जो आदमी अपने आनंद के लिए काम नहीं करता है, वही दूसरे कन्विंस कर सकता है। महाराज सभी सन्यासी जाते हैं वहां, भक्त जाते हैं, सबको नेशनल पार्क जाते हैं, मसाई मारा जाते हैं जब वो, क्योंकि गेम पार्क है, पूरे वर्ल्ड की आंख उस पे लगी है, पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं। लेकिन महाराज 82 से जब तक रहे एक भी बार कोई देखने नहीं गए, कभी नहीं गए। उनके पास टाइम नहीं। दूसरे को बोल देंगे वो वहां का बीच सबसे अच्छा, वर्ल्ड का सबसे अच्छा बीच है मुंबासा में, नैरोबी में नहीं। रूपा जी वो लाइट हाउस है, डेली वॉक लेते थे। तो क्योंकि वहां रूपा जी वॉक लिए थे, महाराज वहां वॉक लेने के लिए हर रोज सुबह जाते थे बीच पे, पब्लिक में सुबह। और दूसरे जब आते थे सन्यासी, ये सब जाएंगे स्विमिंग करेंगे। मैं महाराज को कभी, हमको बोलते थे ये लोग को स्विमिंग करने के लिए ले जाओ भक्तों को, तो ये खुद नहीं जाते कभी। इसका अर्थ नहीं महाराज फैनेटिक नहीं थे, अब जानते थे इनको स्विमिंग करना कोई पाप तो है नहीं, वैष्णव गेम है, उसमें दोष नहीं है। लेकिन महाराज खुद नहीं जाते थे, आप समझ रहे हैं, खुद नहीं जाते थे, कभी नहीं गए, मिशन के सिवाय कहीं नहीं जाते थे। किसी को मिलना होगा तो किस लिए जा रहे हैं वही, तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो 101% जो भी थोड़ा ग्रो हुआ है वहां महाराज के कारण हुआ है। महाराज को इस तरह जाता है। गोपाल कृष्ण महाराज की तभी कीर्तन करेंगे तो आपको लोग को आवाज डिस्टर्ब नहीं करेगी ना? इस समय कुछ मंगल आरती भी कोई दिक्कत। अच्छा, तो अभी तो कीर्तन करेंगे ना, मंगल आरती हो गए। हरे कृष्णा। तो जी का धन्यवाद देते हैं, इतना सुंदर तरीके से जी शब्दों में ही जी का श्रद्धा प्रकट हो रहा था। भगवान की जय। तीन प्रकार के लोग होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। तो यहाँ डिटर्मिनेशन और श्रद्धा के अनुसार और दूसरे ऐसे लोअर ग्रेड की अवसर कहते 12 दिन फल बिंद फैल नहीं चाहिए। जो फल मतलब निम्न कोट के लोग होते हैं वो बिंद के डर से अच्छा लगता है, हरे कृष्ण अच्छा है,
प्रसाद भी मिल जाता है, कभी कभी नाचने का मौका मिल जाता है, ये लोग बहुत खुश रहते, ऐसे वो लोग अप्रिशिएट करते। लेकिन जब सुनते हैं कि 2 घंटे माला करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, लहसुन प्याज नहीं खाना पड़ेगा, तुमको लगता है मैं नहीं, वो लोग अच्छे हैं कि मैं नहीं कर पाऊँ, तो नहीं विघ्न के डर से नहीं कर। और सेकंड क्लास के लोग हैं, कहते हैं विघ्न वो तुरंत चालू कर देते हैं, लेकिन बीच में जब ट्रबल आता है, विघ्न आता है तो छोड़ देते हैं। लेकिन फर्स्ट क्लास के लोग हैं, विघ्न ही पूरा 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 परित्याग, कितनी कठिनाई आए एक बार प्रारंभ करते कभी छोड़ते नहीं है, वही व्यक्ति माया में पहुंचेगा। जो क्योंकि यहाँ तो ऐसे नौकरी करें तो विघ्न आएगी, बोस का चमचा बनना पड़ेगा, फैमिली की डिमांड पूरे नहीं करेंगे तो लोग चिंता करेंगे, चोरी करता है सब करेगा, पत्नी की डिमांड नहीं करेंगे तो निगलेक्ट करेगी। यहाँ तो माया का कितना लाभ खाना पड़ता है। काम क्रोध दास तार लाठी साधु बैठेगा, कहते हैं ऐसे हम काम क्रोध का लाठी पोदस जैसे फुटबॉल हिट करते वो पार्टी ऐसे काम और क्रोध हिट करता है। और ऐसे खाते जब घूमते साधु बैठे पाए, साधु में सेंट्रली पर्सन, साधु भैर जब मिलता है तो क्या करता है, जादू नहीं करता है, जो जादूगर है वो चीटर है। साधु क्या करता है, तार उपदेश मानते, कृष्ण भक्ति पाएगा वो कृष्ण करता, साधु के वो उपदेश करता है, भगवत का उपदेश करता, उसके उपदेश से और दूसरा मंत्र देता है, हरे कृष्ण, दो इंपॉर्टेंट है, उपदेश और मंत्र। जब हम उपदेश के अनुसार मंत्र का जप करते हैं तो क्या मिलता है, कृष्ण भक्ति का, तभी कृष्ण भक्ति प्रकट होती है। और कृष्ण भक्ति हमको भगवान से मिलाती है, दूसरा नहीं मिलाता, भक्ति ही मिलाए। साधु तो आपको उपदेश देता है और ये मंत्र देता है, दो कार्य साधु का, हमेशा उपदेश देना और मंत्र। लेकिन उपदेश और मंत्र से हमारे अंदर भक्ति प्रकट होती है, श्रवणार्थ शुद्ध चित्त करे प्रकट होती है। तो भक्ति, कृष्ण भक्ति पाए तो हम कृष्ण निकल जाए। जब हम कृष्ण भक्ति पाते हैं वही भक्ति हमको भगवान से मिलाती है, मिलाती नहीं है, भक्ति भगवान को कंट्रोल करती है, वशीभूत करती है, चलिए ड्राइवर बना देती है, मैसेंजर बना देती है, दास बना देती है। तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड फुल्ली इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली, उनका आदेश तो मान तुम्ही तर ईश्वर है, तुम्ही का ईश्वर है, ईश्वर नाम रखूंगा, कहते हैं भगवान ठाकुर कहते हैं आप तो ईश्वर के भी ईश्वर हो, आपकी इच्छा ही पूरा संसार में, तब इच्छा मते करे ब्रह्मा से, आपकी इच्छा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, तब इच्छा मते माया सृजन करेगा, कारागार माया करती है और भगवान से नाश करेगा। सब उनकी आज्ञा मानते हैं, लेकिन अर्जुन क्या कहता है, से वो विरोध मत है, प्रथम स्थापित में मेरा दोनों सेनाओं के बीच में। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं निश्चित लेके जाओ, अजनपति दुर्लभ भौता में गुना, वो कैसे हैं, मुक्ति के लाभ हर चीज किंतु भक्ति लाभ, वो मुक्ति तो दे देते हैं कृष्ण का नाम बताओ, लेकिन किंतु भक्ति जल्दी नहीं देते, क्योंकि भक्ति देने से चाहिए ड्राइवर, आप में भक्ति आ गई, आपको जीवन के ड्राइवर भगवान हो जाते, कैसे बजाना है, कैसे संसार बहुत सागर है, इसमें तिगंदर कितने खतरनाक मछलियां हैं, काम क्रोध लोग बदमाशे हमारे शत्रु, लेकिन जब भगवान के हाथ में लगाम आ गई फिर भवसागर के ताड़ाव कहते हैं संस्कृत में, उसको पार किया। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसी किसी ढंग से पूर्व जन के सुकृत और भक्तों के संग से आप लोग भक्ति में आ गए, इसको कभी छोड़ना नहीं, कभी मत छोड़ना। कितनी डिफिकल्टी आई, कितनी, क्योंकि आपका जीवन अभी जो ब्रह्मचारी हो जाएंगे इसमें से उनके लिए तो वृषि है,
परमानेंट में बिजली से हो जाएंगे, आवश्यकताएं कम हो जाती है। सबको जानना तो है ना, आप गृहस्थ होके मरेंगे और सन्यासी होके भी मृत्यु के बाद बेटर है सन्यासी होकर शरीर छोड़े। क्यों गृहस्थ दुनिया का जंजाल के छोड़े। जो भाग्यशाली जीव होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो क्यों पड़े इसमें? माया क्या है? जैसे स्टैचू बाहर का स्टैचू लगा है ना, तो लोग दुकान में कपड़े बेचने के लिए लगा देते हैं। आप आलिंगन करो, जाके किस करो, कितना सुख मिलेगा सुख। माया को साइडो करते हैं, आप साइडो को किस करते हो अपने? ये जो बॉडी हमारी साइडो ओरिजिनल है, ओरिजिनल बॉडी तो सच्चिदानंद है जो आत्मा की शरीर। तो इसलिए जो बुद्धिमान है ये साइडो किस नहीं करता, तो स्टैचू को आलिंगन नहीं, वो कृष्ण को आलिंगन था। कृष्ण हाथ फैलाए खड़े, चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ उठाए, आलिंगन करने के तैयार है। तो जो बुद्धिमान है, ये बुद्धि भक्ति से प्रकट होती है। ददान बुद्धि होगा, आप जप करेंगे, माला करेंगे, संग करेंगे, भगवान आपको बुद्धि देंगे, आप पहचान जाएंगे कि माया कैसे की, कितनी अच्छी उसकी चाल है, कैसे हमको आके मीठा मीठा बोल रही है, तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये होगा, हमारे साथ खेल करोगे, वो भक्त लोग पहचान जाएंगे। जो भक्त नहीं है वही अपना जीवन समझते हैं, उसमें बेचारे फिर पूरा जन्म होगा, फिर जन्म मृत्यु का नया अध्याय, नया चैप्टर चालू। तो आप सभी लोग भाग्यशाली हो। आप सोचो पटना की यहाँ की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पूना की, आप कितने लोग? बहुत कम, 3 करोड़ में 10% भी नहीं है। 10% नहीं तो हमारा महत्व कितना है आप समझ। तो हम लोग रियली भाग्यशाली है। ये श्री प्रभुपाद की कृपा है। श्री प्रभुपाद की कृपा से सबको भागवतम का, भगवता का दर्शन मिल रहा है। इसलिए इसको अपना करके आप टू इससे ही विजय, मृत्यु पर हम विजय प्राप्त करेंगे। यही भागवतम को भगवान के धाम ले जाएगा, जिसको आप लोग कभी मत छोड़े। हरे कृष्ण। हरे